We are fine. Fine, ma'am. Fine, Fine. ma'am. Yes. Fine, ma'am. मैम आपका मोबाइल Ma'am, voice is not coming, ma'am. मैम your voice Ma'am, is आपका Ma'am, आवाज नहीं your आ रहा voice है. is not coming. मैम आपका Ma'am, your voice is not माइक coming. अब जा रही आवाज मेरी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. We can Yes, listen. yes, children. No, ma'am. Yes, children. Who is not Good listening morning, me? ma'am. Okay, children. Good morning to all of you. How are Ma'am, all of you? mute आप लोग all. कैसे हैं? Yes, I am going to mute you all. Yes, children. In my last class also, I have told you that please kindly don't make extra voice at the time you are doing your classes. But some students have a habit. वो लोग बात करते ही रहते हैं. Anyway, that's not a matter. And I think class 8G student, the new students have also joined the class. How are all of you? Good morning. 8G new students, आप लोग सभी को good morning. And I think, I hope that today I will revise and again I will teach you the lesson 1 because we have completed lesson 1. For class 8G students, I am going to again explain it and then we will do the question answer of the lesson. This is our today's what the work planning, class planning of the for the day today's class planning. And I hope that most of you have completed your homework also because I have given you homework A, B, and C, D of lesson 1. And on the snap also I have given it. And this is now I'm going to again explain the resources for the class 8G new students who are joining the class today. Resources, students, we have completed resources utilization and development. Again, I'm going to teach you resources utilization and development. This is your first lesson and it is related to your geography, part of geography. वो फिर आर्यन दास सेवेना कोई नए बच्चे हैं. We will talk about the copy letter. And I request all of you, please view the snap homework or the live class recording. During the class time, I always instruct about the number of copies and in which copy you have to do your homework and in which copy you have to write your classwork. I have given individual, I have given instructions already I have given. So please don't talk about the copy. At the end of this session, I will talk about the copies. Again, I will talk. But I request all of you, please kindly view the YouTube. In that live class, you will get all message. Last 2 or 3 days, YouTube आप लोग देख लीजिए. जब से YouTube का हम लोगों ने डालना शुरू किया live class का, after 2 days of the new session 8, 9, 10 से शुरू हुआ है. आप उसको देखना शुरू करिए. You will get all information about copy. Please don't talk about the copy during the class time. एवरी डे कॉपी का बात नहीं होता है. रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. नेचर हैज बेस्टोड मतलब गिफ्ट देता है हम लोगों को. अपॉन आवर मदर अर्थ विथ लार्ज वेराइटीज ऑफ रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स एटसेट्रा. ऑल दीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर. We use these gifts of nature to fulfill our day-to-day needs. We need air to breathe, water to drink and food to eat. We get all these things from earth. We get all these things from the earth itself. Hence all the things on earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources. The resources, what are they, which are necessary for our they are known as resources, children.
Next is what is the even human being are considered as a resource. Why we human being are considered as the resource? Because we are an asset. हम लोग क्या है, एक धन की तरह हैं. We it is only with the help of human skill that the other resource can be developed. Other resource कैसे develop करते हैं? Human resource अपना जब help करता है, मतलब अपना ताकत लगाता है, तभी other resource develop करते हैं. Human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. They generally grow and become complex with the process of change in the society. In ancient time, emphasis was mainly given on satisfying the basic needs such as food, clothing, and shelter, which were derived from natural environment. Even today, the pygmies of Africa ate edible plants, roots, flowers, fruits, and hunt animals. In advanced societies, greater emphasis is laid on the utilization of resource for satisfying the multifarious needs of human being. It means that it shows that our needs are not static or not fixed. वे यूनिफॉर्म भी नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है. टाइम टू टाइम और विद द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन इट इज चेंजिंग डे टू डे. लेकिन जैसे अभी भी कहता है, कुछ लोग जो है जैसे पिग्मीज हैं अफ्रीका के, वो लोग अभी भी नेचर पर ज्यादा डिपेंड करते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स और डिजायर्स. Utility and value of a resource vary from time to time and place to place. Earlier human civilization flourished along the river valleys as they used water for irrigating fields. Now human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation, and industries, etc. China, United States of America, USA are generating more wind energy than India. अब कहता है कि देखिए पहले जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो आदमी एक ही चीज से बहुत सारा काम करने लगा. डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे शुरू में जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है जब इन क्लास 6 ऑल्सो यू ऑल हैव स्टडीड दैट that the human needs are not the human civilization has been developed on the near the water body because the water was necessary for the agriculture, and which was and the river basins where the fertile land of the river basin were very useful for the agricultural purpose. So but जैसे जैसे with the change of the time course of the time, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, तो वैसे what is happening अब धीरे धीरे आदमी उसी पानी से एग्रीकल्चर भी कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी ये कर रहा है, नेविगेशन भी कर रहा है. तो these are the कि आदमी जो है यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स टाइम टू टाइम जो है बढ़ता जाता है, चेंज होता जाता है, उसका वैल्यू बदलता जाता है, ये कहने का मतलब है. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. रिसोर्सेज बिकेम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड. उसको जब प्रोसेस में करते हैं तब. फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोसेस का मतलब उसको जब एक रिवर्स उसका व्हाट इज नेविगेशन का मतलब है उस पर नाव वगैरह चलाना, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना, दैट इज नोन एज द नेविगेशन. नेवी से नेविगेशन है और कुछ नहीं है, दैट इज नेवी से नेविगेशन है और नथिंग इज. तो रिसोर्स को जब तक हम प्रोसेस में करते हैं, मतलब अगर उसी को छोड़ देंगे उसी के रूप में जैसा है, तो फिर उसको रिसोर्स नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरिफाई करके अपने यूज में लाते हैं, तब वो जो है डिफरेंट यूज में आ जाता है. जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न. कॉटन जो निकलता है उसको धागा में, अदर ऑन फर्दर प्रोसेसिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक. फिर उसको कपड़े में. आई हैव डाउट, प्लीज अनम्यूट मी. नो, व्हाट इज योर डाउट? I am not going to unmute you. I am not going to unmute you. आप हमसे चैटिंग करके ही बात करिए. At the end of the class, I will unmute you. आपको जो भी डाउट है आप चैटिंग करके बात करिए. ABCD हो चुका है. पहले का क्लास आपका स्कूल का क्लास 8 तारीख से चल रहा है. उस समय से बच्चे जो हैं जो भी कर रहे हैं, ये लेसन भी पूरा हो चुका है. I am just revising the lesson. Why I am again explaining the lesson? For the benefit of the students of the class 8G who are today joining the class. That is a new section which is joining class today. For themselves, I am explaining the lesson again. So please try to join the class at time.
जब क्लास का टाइम दिया जा चुका है, स्कूल शुरू कर चुका है अपना क्लासेस, तो आप उसको शुरू भी करिए। बीच में नहीं पूछे कि मैम हो चुका है कि नहीं। आप क्लास ग्रुप में चैट करके हमसे बात करिए। It is converted into fabric, then finally into garments. Thus, at various stages, value addition is possible by applying skill and technology. अब कहता है कि जब प्रोसेसिंग जब हम लोग करते हैं तो उसी समय स्किल और टेक्नोलॉजी दोनों को अप्लाई करना पड़ता है। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। अब किस चीज पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ, पहला सबसे पहला रिसोर्स होना चाहिए, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, फिर रिसोर्स को प्रोसेस में लाने के लिए ह्यूमन बीइंग को उतना स्किल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अब पैसा भी होना चाहिए, ओनली देन इट इज पॉसिबल to use the resources into various manners, or availability of water. Water is very compulsory for the development of the human civilization, advancement of technology, availability of transport and communication facilities, etc. In the initial stage of economic development, availability of resource played a very important role. With the advancement of technology, availability of capital and skilled labor became a necessity for the utilization of resources. For example, USA is termed as a developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. On the other hand, India is still in a developing stage. Though resources are essential for development, but their mere presence does not guarantee development. Other factors also play a crucial role. Four chattings I have got. What is value addition? अनुराग, ये चैप्टर 1 का ABCD हो गया क्या? यस हो गया है। और वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जो कि हम लोग अपने स्किल से उसमें जो ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज द वैल्यू एडिशन। जो हम लोग अपने स्किल से उसको, कोई भी रिसोर्स जब तक वो काम तब तक नहीं करेगा जब तक उसमें हम लोग वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? कोई भी रिसोर्स जब तक उसको रिसोर्स उसको माना जाएगा जब तक उसमें वैल्यू एडेड नहीं होगा। मैम, गारंटी का मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज का गारंटी देना कि ये काम होगा, दैट इज द गारंटी। गारंटी का मतलब मैम मीनिंग ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है उसको फिर से नया करना। और मीनिंग नहीं करिए आप लोग, मीनिंग के लिए आप लोग एक कॉपी बनाइए, डिक्शनरी में थोड़ा देखिए, थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए आगे बढ़िए। ओके, टेल मैम, क्या आपको बताएं? आदित्य, आपको क्या पूछना है? व्हाट यू आस्किंग, व्हाट यू आर आस्किंग? आदित्य कुमार बताइए, व्हाट यू आर आस्किंग? आई जस्ट वांट टू नो। आदित्य, व्हाट यू आर आस्किंग? मीनिंग ऑफ रिन्यूएबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। रिन्यूएबल का मतलब फिर से उसको बनाना, नया करना। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यहाँ आपका दिया भी है, यहाँ आपका दिया भी हुआ है। मैम आई हैव डिस्कनेक्टेड, आपका यहाँ दिया हुआ है। रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है वो किस तरह से नया हो सकता है या नहीं हो सकता है। रिन्यूएबल मतलब उसको फिर से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओरिजिन, बायोटिक, ए बायोटिक, बायोटिक मतलब जो नेचर से मिलता है, ए बायोटिक जिसको हम लोग बनाते हैं। ऑकरेंस, नेचुरल, मैन मेड। उसके बाद डेवलपमेंट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल, potential and actual. Classification based on renewability. Renewable resources are also known as inexhaustible resources. मतलब inexhaust मतलब वो खत्म नहीं हो, फिर से उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। Resources which can be renewed either naturally or by human efforts are known as renewable resources. उसको renewable resource कहते हैं, या तो खुद ही हो जाता है या आदमी उसको करता है। तो for example, solar energy, air and water, some of the renewable resources are always available and do not get exhausted by human activities. मतलब हमेशा मिल जाते हैं, खत्म नहीं होते हम लोग हमारे एक्टिविटीज से। ये अनुराग आनंद तो अजब तरह से करके रखा। अभी पोटेंशियल में हम गए हैं, हम जब जाएंगे तो तुमको बता देंगे अनुराग। आई हैव नॉट गॉन, अभी हम पोटेंशियल में नहीं गए हैं।
अभी वी हैव स्टार्टेड क्लासिफिकेशन, उसके बाद पोटेंशियल में आएंगे, जब आएंगे ना तो उस समय तुमको बताएंगे। जस्ट वेट, चैटिंग करने का इतना ही मन है तो थोड़ा वेट कर लो, जब क्लास ओवर हो जाए तब चैटिंग करो। ऑकरेंस का मतलब होता है उत्पन्न होला फिर से, दैट इज मीनिंग ऑफ ऑकरेंस। द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूजेज। अब इसका क्वालिटी कैसे खराब होता है, अगर उसका हम यूज प्रॉपरली नहीं करते हैं तब इसका क्वालिटी खराब होता है। रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और रिन्यू आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे, जैसे सोलर और विंड एनर्जी, ये डेली सन हम लोग को दिखते हैं, विंड भी चलती है, तो इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। लेकिन इसको, इसका क्वालिटी खराब करने का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको ठीक से यूज नहीं करते हैं तो उसका क्वालिटी क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जितना हमको चाहिए उतना एनर्जी हमको नहीं मिल पाता है। क्वालिटी खराब होने का मतलब ये हुआ। इट शुड बी, मतलब उसका यूज यूटिलाइजेशन ऐसे होना दैट इट शुड बी प्योर। जैसे मान लीजिए विंड एनर्जी बना रहे हैं तो विंड के आने जाने का जो रास्ता होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, कि विंड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। कहने का मतलब ये हुआ। सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन ऐसा कि जहाँ सनलाइट डायरेक्ट आता हो। अब कहीं छाया में लगा देंगे, कहीं जहाँ की प्रॉपरली सनलाइट नहीं आता हो तो हम सोचेंगे सन, सो वी विल यूज द सोलर एनर्जी और वी विल प्रोड्यूस द सोलर एनर्जी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसी तरह कहता है कुछ रिसोर्स ऐसा होता है, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू रिन्यू, बनने में समय लेता है। जैसे क्या होता है, सॉइल में हुआ, पेट्रोलियम में हुआ, ऑल दिस आर। तो अब उसको कहता है कि ये जो है इसको नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि खुद बनने में इसके थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं तो फिर ये बन नहीं सकता है, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहता है। दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड, क्योंकि ये फिर से रिन्यू नहीं हो सकते हैं। एनर्जी रिसोर्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देयर इज ए कंसर्न अबाउट देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब कहता है इसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब इसका अति यूज नहीं करना चाहिए, इसी को दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट on the earth surface and complete utilization of such resource which result in their exhaustion। अब कहता है लिमिटेड है ये, क्योंकि थाउजेंड ऑफ ईयर इसके बनने में लगवाई, दे आर लिमिटेड बिकॉज इट इज टेकिंग थाउजेंड ऑफ ईयर टू रिन्यू होने में, तब तक जो है बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इसका कहता है अगर इसका कोई अल्टरनेट हो तो हमको उसको यूज करना चाहिए। जैसे अभी कहा जा रहा है कि वी शुड यूज सोलर एंड विंड एनर्जी बिकॉज इट इज अवेलेबल अबंडेंस इन नेचर, इसलिए because it's abundance in nature. I think now you are getting my voice. So next इफेक्ट द ह्यूमन, और सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए कि इस तरह के एनर्जी को हम लोग एक्स्ट्रा में यूज करके रख देंगे तो फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा, विल नॉट एबल टू गेट दिस टाइप्स ऑफ these resources for their use. Ma'am, I am new student of class 8G. I have not write ABCD. Please, ma'am, send in snap homework. They are available. Exhaustion of these resources will have an adverse effect on the future generation. Some of the minerals like metallic ores, gold are recyclable. These metals may be used again and again after processing. A classification based on origin. Resources which are obtained from biosphere and have life are known as biotic resources. For example, birds, animal, fish, forest, etc. are biotic resources. The biotic resources provide a variety of useful products. They have the capacity to reproduce or regenerate. मतलब बायोटिक रिसोर्स जो होता है अपनी तरह बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है और बना सकता है। जेनरेट का मतलब बना सकता है। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बट सम टेक ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिन्यूड, फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट। अब ये सारा जो है, ये सारा जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल तो नहीं कर रहा है, मेटेलिक ओर को कहता है रिसाइकल करके इसको फिर से यूज किया जाता है। दे आर नॉट रिसाइकल करके किया जाता है। रिन्यूएबल का अलग है, रिसाइकल का मतलब होता है कि उसको बार बार मेटल्स प्रोसेसिंग के बाद उसको रिसाइकल करके, प्रोसेसिंग करके उसको यूज किया जा सकता है। बट सम टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू बी रिन्यूड। मेटल का मतलब क्या होता है, ओर का मतलब उससे निकला हुआ, मेटल का मतलब मेटेलिक, जो उससे निकलता है उसी को मेटेलिक ओर कहते हैं। The renewed, for example, the forest.
All non-living resources are known as abiotic resources. For example, land, water, mineral, etc. The abiotic resources are not renewable except water, which is inexhaustible. मतलब ये जो है वाटर जो है ये जो है जो जितना भी नॉन लिविंग एबायोटिक रिसोर्सेज जो है ये रिन्यूएबल नहीं है वाटर को छोड़ के जो इनएग्जॉस्टेबल है. ओके, these resources are in great demand for the development of various industries and एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है. और लैंड भी चाहिए, वाटर तो चाहिए ही चाहिए, मिनरल भी चाहिए. इसीलिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब मिलना. Resources available from nature in the form of water, mineral, forest, etc. and used by human beings to satisfy their needs are known as natural resources. Many of these natural resources are essential for the survival of human beings and from the base of the development of a country. अब बिना इनके किसी देश का मतलब डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. दिस दे वांट टू से बेस है, अगर ये नहीं रहेगा तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट है resources created by human beings to satisfy their needs are known as man-made resources. What are the man-made resources? They are created by the human being to satisfy their needs. कुछ तो नेचुरल दे दिया, लैंड, एयर, वाटर, ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन अब उसको जो है हम लोग अब उसी नेचुरल रिसोर्सेज से अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो करते हैं वो मैन मेड कहलाता है. अब जैसे कि मान लीजिए कि आदमी शेल्टर पे ही हम लोग चले जाएं तो शेल्टर, नेचुरल शेल्टर क्या था? वो केव्स था. लेकिन आदमी अपने रहने के लिए लैंड पर आया और उसके बाद पर सबसे पहले हट बनाया. हट के बाद पर वो जो टेम्पररी हाउस शेल्टर था उसके बाद परमानेंट शेल्टर बनाने लगा, सजाने लगा. और उसी तरह से पानी वाटर बॉडीज के नीचे पहले रहता था, फिर वाटर बॉडीज को अपने आराम के लिए अपने घर के अंदर टैप से ले आया. तो ऑल दीज आर मैन मेड रिसोर्सेज. जो नेचुरल को आदमी अपने सहूलियत के लिए टर्न किया, दे आर नोन एज द मैन मेड resources. For example, road, building, machine, etc. These resources are essential for us, but they are also developed from natural resources. ये तो क्लियर हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज से बिफोर अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया आदमी ने ह्यूमन बीइंग ने अपने सहूलियत के लिए क्या किया कि नेचुरल रिसोर्सेज को ही और ज्यादा मतलब मॉडिफाई करके अपने लिए बनाया. दैट इज नोन एज द मैन मेड रिसोर्सेज. बट विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज मैन मेड रिसोर्सेज आर नॉट पॉसिबल. उसके बाद द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. क्वालिटी मतलब प्रकार, क्वांटिटी मतलब कितना ज्यादा हो सकता है वो. क्वालिटी का मतलब स्टैंडर्ड और क्वांटिटी का मतलब कितना ज्यादा हो सकता है. 1, 10, 20, 100 दैट इज क्वांटिटी. क्वालिटी मतलब अच्छा. ऑफ ए पीपल, क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्स. अब कहता है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ह्यूमन रिसोर्स को डिटरमाइन करता है कि ये कैसा रहेगा. हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रेस्पेक्टिव सोसाइटी इन पॉजिटिव वे. अब जो लोग हेल्दी रहते हैं, अच्छे से पढ़े लिखे रहते हैं तो वो अपने सोसाइटी को अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, हमेशा बीमार रहेंगे तो क्या होगा? जो और रिसोर्स होगा उनको ठीक करने में लगाना पड़ेगा, उनको हमेशा दवा देना पड़ेगा, उनको वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे बढ़ाने में, वो घटाएंगे ही. रिसोर्स को यूज करेंगे लेकिन रिसोर्स को कैसे बढ़ाया जाएगा इसको वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट गुड फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ द व्यू. माल नरिश्ड मतलब कम जिनको खाना दिया जाता है. एंड इलिटरेट जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है. पीपल ऑन द अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रेस्पेक्टिव सोसाइटी. ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल डेवलप्ड इन जापान एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकली डेवलप्ड. African nations, in spite of being rich in resources, are less developed as most of the people are unskilled and illiterate. अब कहता है जापान के लोग जो हैं वहाँ रिसोर्स कम है लेकिन फिर भी जापान के लोग जो हैं बहुत ज्यादा डेवलप है बिकॉज दे आर स्किल्ड. वो लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं और लेबोरियस ऑल्सो. इन द सेम वे अगर हम लोग जो है बात करते हैं अफ्रीका का तो अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है बट द पीपल आर नॉट वेरी people are illiterate that they are unable to utilize the resources properly. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स. अब देखिए डेवलपमेंट, अब इसी को जो अनुराग जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो उसमें हम लोग अभी आए हैं. पूछता है अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए कंट्री व्हिच आर नॉट फुल्ली टैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट रॉक ऑफ हिमालयाज और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर. The potential resources need detailed survey for estimating their quality and quantity. The preliminary assessment by the US
geological survey suggests that the Arctic seabeds may hold as much as 25% of the world undiscovered oil and natural gas reserves. By one estimate, 400 billion barrels of oil might be beneath the Arctic Ocean bed. The actual resources of a country are those which have been thoroughly surveyed and their quantity have been ascertained. The exploration, development, and utilization of an actual resource depends upon the technology available. For example, Saudi Arabia has 25.9% of the world oil reserve. अब कहता है देखिए व्हाट इज द पोटेंशियल रिसर्च, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, पोटेंशियलिटी कि इतना है, इतना हो सकता है, कुछ सर्वे करके एक अनुमान लगाया जाता है. बट एक्चुअल क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स जिसको हम लोग यूज करते हैं. तो अब जैसे कहा जाता है सर्वे पोटेंशियलिटी में कहा जाता है कि यूएस ज्योग्राफिकल सर्वे सजेस्ट किया है कि आर्कटिक सी बेड पर 25% वर्ल्ड का अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड पेट्रोलियम है. अब पता नहीं चला लेकिन ऐसा कहा गया है आर्कटिक सी बेड पर है. लेकिन सऊदी अरेबिया के पास दैट इज पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है. लेकिन जब एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में अभी सऊदी अरेबिया का उसी में एग्जांपल दे दिया कि उसके पास 25.9% वर्ल्ड रिजर्व है जो कि यूज किया जा रहा है. समझ में आ गया, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल हो गया, आज जिसके बारे में अनुमान लगाते हैं दैट इज पोटेंशियल हो गया. अनुराग आनंद, आप मेरे ख्याल से आपने सुन लिया होगा व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज पोटेंशियल. नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सोच समझ के और उसको बचाना, किसी भी चीज को आप फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना भी, आज के लिए यूज भी कर लेना और सेव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दैट इज नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानेंगे. तो व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए जो डेवलपमेंट अपना ये होता है उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं. It meets the needs of the present without compromising the needs of. compromising मतलब फ्यूचर का भी कोई नीड्स कटे नहीं, ये बात समझिए, फ्यूचर का भी कोई नीड्स कटे नहीं. मतलब आज अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, तो हमको ऐसा होना चाहिए कि आगे वाले जनरेशन में जैसे आप लोग बच्चे भी जब चाहिए तो आपके लिए भी एक गिलास पानी अवेलेबल रहे. दैट इज नोन एज द फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, मतलब किसी का भी जरूरत काटा नहीं जाए, आज भी यूज हो वो कल भी यूज करे. दैट इज द सस्टेनेबल development. Therefore, the resource should be utilized judiciously so that after fulfilling our present requirement, they are also conserved for the future generation. अब कहता है कि इसीलिए हम लोग को उसको कैसे रिसोर्स को यूज करना चाहिए, रिसोर्स को इस तरह से यूज करना चाहिए कि वो आज हमारे लिए भी रहे और जो फ्यूचर जनरेशन हो उसके भी काम आता रहे. That is the basic, that by that way we should have to use the resources. We should have to use the resources judicially. That is the judicially मतलब सोच समझ के न्यायपूर्वक, judicially मतलब सोच समझ कर न्यायपूर्वक यूज करना. That is they are also conserved for the future generation. Most of our resources are limited in their supply. कहता है ज्यादा रिसोर्स क्या है, सप्लाई में लिमिटेड है हमारे पास. Our overuse of many valuable resources have led to their degradation or deterioration in quality. For example, soil, land, and water resource. Therefore, it is essential that अब कहता है कि जो भी है वो हम लोग के पास लैंड हुआ, वाटर हुआ, सॉइल हुआ, वो सब लिमिटेड है. तब अब कहता है कि हमको उनको हाउ टू यूज ऑल दैट रिसोर्सेज. यूज ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियली, न्यायपूर्वक अच्छे से यूज करिए कि वो बर्बाद नहीं हो. मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स को मिनिमाइज करिए, उसका बर्बादी, डिप्लेशन मतलब उसका बर्बादी. कंजर्व द वेरिड स्पेसीज, जो डिफरेंट टाइप जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको बचाइए. द यूज ऑफ रिसोर्सेज वैरी फ्रॉम कंट्री टू अनदर. वैरी मतलब वैरी करना मतलब अलग अलग होता है, एक देश से दूसरे देश में वैरी करता है. दैट वैरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में वैरी करता है.
one country to another. But due to technology and skilled human resource, the developed countries like United Kingdom, अब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स जिनका डेवलप है, अब उसमें कहता है कौन कौन सा कंट्री है जिसका टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप है, तो उसमें यूनाइटेड किंगडम का सबसे पहले नाम ले रहा है अमेरिका का. इज इट क्लियर फॉर ऑल? अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम दैट इज अमेरिका का नाम ले रहा है. और यूएसए मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. अपनी मतलब मैक्सिमम, ऑप्टिमम मतलब जितना भी उच्चतम स्तर तक जाकर यूज करते हैं. इंडिया उतना नहीं कर पाया बिकॉज हम लोग का टेक्नोलॉजी और क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों उतना अच्छा नहीं है. क्वांटिटी तो है बट क्वालिटी अच्छा नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन. अब कहता है रिसोर्स जो है वो पूरे दुनिया में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन. अनइवन मतलब बराबर नहीं है. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो अब नेचुरल रिसोर्स का क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो है यूज होता जा रहा है of natural resources. This has led to drastic depletion and degradation of natural resources. For example, overutilization of soil has resulted in the depletion of the fertility of soil in many parts of the world. अब इतना ज्यादा soil का use किया जा रहा है कि अब soil का fertility कम होता चला जा रहा है. कम करके उससे क्या होता है कि जो भी crops है वो उसका quality खराब होते जा रहा है. जैसे पेस्टिसाइड यूज करते हैं, एक साल में बहुत सारा फसल उस पर उगा लेते हैं पेस्टिसाइड मैक्सिमम यूज करके, तो इससे क्या होता है कि उससे डिफरेंट तरह की बीमारियां भी हम लोगों को हो रही हैं. वी आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस आल्सो. thus there is an urgent need to maintain a balance between population, resource planning and conservation. अब क्या है, एक मैनेज करना चाहिए कि ये क्या कहते हैं रिसोर्स को कैसे हम लोग यूज करें, बैलेंस रखें और पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल रखें. रिसोर्स शुड बी यूज जुडिशियली, अदरवाइज मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस. अब अगर अच्छे से हम लोग रिसोर्स को यूज नहीं करेंगे तो आदमी को क्या होगा, डायर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब बहुत तरह की समस्याओं को का सामना करना पड़ेगा. ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैज बीन एन ट्रेमेंडस, मतलब बहुत ज्यादा, ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ट्रेमेंडस increase in the concern for the conservation and management of resource. अब कंजर्वेशन मैनेजमेंट के रिसोर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है. as they are rapidly depleting and need to be conserved. अब क्योंकि वो बहुत जल्दी से खत्म होते जा रहे हैं, अब उनको हम लोग को कंजर्व करने का टाइम है कि अगर हम लोग को रिसोर्स को बचाएंगे नहीं तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के पास रिसोर्स नहीं रहेगा और इट विल हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को भी हैम्पर करेगा. Conservation means sustainable and optimum utilization of resources. What is the meaning of conservation? Sustainable मतलब सोच समझकर, optimum मतलब अपने लायक यूज करिए, मतलब एक उच्चता की आदर्श स्थिति कि हमने खुद यूज किया लेकिन ऐसा नहीं यूज किया कि उसको बर्बाद किया. That is the optimum. We must realize that nature and its resources are not merely ours. कहता है कि हमको सोचना चाहिए नेचर और जो मतलब प्रकृति और उसमें जो भी अवेलेबल रिसोर्स है वो सिर्फ मेरा नहीं है, अब किसका है. दे ऑल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन का भी ये है. Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. अब कहता है कि रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज करके और वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट को कम से कम करना है. डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स. अब कहता है कि कैसे क्या करना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना देना है, ह्यूमन स्किल अपने स्किल को भी बढ़ाना है कि कम चीज को हम लोग और मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं और ज्यादा पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ने नहीं देना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द सस्टेनेबल कम्युनिटी का मतलब सस्टेनेबल मतलब खुद यूज करो दूसरे को भी करने दो. और क्यों उसको करना चाहिए, सस्टेंस ऑफ लाइफ, सस्टेन मतलब जिंदगी रहने पर, अर्थ पर जिंदगी रहने देने के लिए रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए, खुद भी यूज करना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना भी चाहिए. दैट इज द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब. अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो अर्थ पर जो बैलेंस है पेड़ पौधे जानवर आदमी वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. आवर अर्थ इज द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट. अर्थ ही एक प्लैनेट ऐसा है 9 प्लैनेट में जहाँ की
लाइफ है, हैबिटेट मतलब जिंदगी, लोग रहते हैं, दैट इज कहने का मतलब। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डिटोरेशन, फॉलो 5R, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रियूज एंड रीथिंक। हम लोग को इसको रिफ्यूज एंड रीथिंक, ये 5R जो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यूज द रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। समय के लालच से नहीं यूज करिए। जैसे लोग जानवर को मार देते हैं कि उसका हड्डी बेच देंगे, उससे उसके खाल से कुछ पैसा कमा लेंगे, तो ये लालच हुआ। नीड है तब आप उसको करिए, लेकिन लालच के लिए नहीं करिए। क्रिएट फॉर केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। कहता नेचर का ध्यान रखिए, नेचर आपका ध्यान रखेगी। और द चिल्ड्रन, आप लोग को बहुत सारा क्वेरी था, वी हैव कंप्लीटेड, अगेन आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर। एंड आप लोगों को कुछ स्टूडेंट जो नए ज्वाइन किए उनको बहुत सारा क्वेरी था, तो सैटरडे का ऑनलाइन क्लास आप लोग देखिए। सैटरडे का ऑनलाइन क्लास यूट्यूब वीडियो आप लोग देखिए। सैटरडे था आपका, किस तारीख को था आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? नॉट सैटरडे, मंडे का। ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग को छुट्टी था, आज थर्सडे है। ऑन मंडे क्लास को आप लोग देखिएगा, दैट इज